الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدنی علما۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشست میں ہم نے 13واں پارہ 13 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ ابراہیم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایک رکوع آپ سب نے سماعت کیا ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے یاد رکھے ہوں گے، اور کیونکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے انشاءاللہ آج سے 14 رکوع آغاز ہوگا، اور بغور سماعت کرنے کی کوشش کریں، توجہ کے ساتھ، فوکس کے ساتھ۔ سورہ ابراہیم ہمارا چل رہا ہے، سورہ یوسف مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد بھی ہم نے سورۃ الرعد مکمل کیا ہے اور سورہ ابراہیم ہم نے آغاز کیا ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر آپ کافی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ آج کا اس پروگرام کو آغاز کرتے ہیں، بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم اور وہ سب کے سب لوگ جو زمین میں کفر کرنے لگے تو بے شک اللہ ان سب سے یقیناً بے نیاز لائق حمد و ثنا ہے۔ تو یہاں پر پہلی آیت میں ہمارے لیے ایک اچھی انداز میں اچھی بات، یعنی ایک امپورٹنٹ ضروری بات ہم سب کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور ایک ہمیں یعنی سمجھیں کہ ہمیں ایک تاکید کی جا رہی ہے کہ کس طرح ہماری زندگی میں ہم اپنی لائف کو گزارنا چاہیے۔ پہلی بات یہاں پر ہمیں 2 چیزوں کا آگاہ کر رہے ہیں، 2 چیزوں کے بارے میں نصیحت کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے گزشتہ رکوع میں سماعت کیا تھا مختصر انداز میں، جس طرح آپ نے کافی مرتبہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو نے سماعت کیا، کس طرح کیا کیا ہوا تھا وہاں پر۔ تو آج موسیٰ علیہ السلام کو قوم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی نصیحت کے ساتھ ہمیں یہاں پر سمجھا رہا ہے کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا، کہ مطلب رب نے ہمیں آگاہ فرمایا کس کے اوپر، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم پر یہ نعمتوں ضرور اضافہ کریں گے، یعنی ہمیں جو بھی نعمتیں دی جا رہی ہے ہم اگر اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور ناشکری کرنے پر جو بھی آپ کو نعمتیں دی جا رہی ہیں اس سے بھی آپ وہ بھی گواہ بیٹھیں گے، اور اللہ کا عذاب بھی ہو جائے گا۔ اور جو شکر ادا کریں گے، کم از کم آپ کے پاس جو بھی ہے، جو ہمیں زندگی بھی دی گئی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، تو اب جس طرح بسر کر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اگر ایک ایک نعمت پہ اگر ہم بات کرنا شروع کریں، غور و فکر کریں گے تو آپ نہ جانیں گے، سمجھیں گے کہ کیا یہ سب نعمتیں مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں اگزامپل، آپ کورونا کا پیزن، ہمیں کورونا کا جو پیریڈ تھا 2 سال، آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح لوگ سانس لینے میں تکلیف کے ساتھ گزر رہے تھے۔ تو وہ ٹائم پہ آپ کو آکسیجن کی اہمیت معلوم ہوئی، آپ سب کو آکسیجن کیا ہے، اور کس طرح لوگ آکسیجن کے لیے کتنے لاکھوں روپئے بھی ادا کر رہے تھے۔ مگر جب ہم غور و فکر کریں جس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سانس ہم جب لے رہے ہیں تو آکسیجن ہم لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں فری میں آکسیجن مل رہی ہے۔ تو آج ہم اس نعمت پہ بھی اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح اگر ہم غور و فکر کریں گے جو جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہے، اگر ہم اس پر شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ہی فرما رہا ہے آگاہ رہو، میں نے تم فرمایا، اگر رب نے آگاہ فرمایا کہ ہم کو اس طرح کے اگر تم
जो भी नियामतें दी गई है उस पर अगर शुक्र अदा करेंगे उसमें और इजाफा होगा इंशाअल्लाह। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो आजाब होगा, मेरा आजाब यकीनन सख्त है। वक़ाल मूसा इन तकफुरु अंतुम मन फिल अर्ज़ि जमीआ फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम और वो सब के सब जो लोग जमीन में कुफ्र करने लगे तो बेशक अल्लाह उन सब से यकीनन बेनियाज है, अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, बेनियाज है अल्लाह, अल्लाह ताला लायक है हम्दो सना है। तो हमें उन दो चीजों पर गौर फिक्र करना है, शुक्राना और नियामतों पर शुक्र अदा करना और नाशुक्री से बचना, सब्र करना। अलम यअतिकुम नबअुल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम क़ौम नूह व आद व समूद वल्लज़ीना मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले हो गुजरे हैं, और वो कौम नूह, कौम आद और समूद की कौमों के लोग थे, और कुछ लोग जो उनके बाद हुए उन्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि वो सिफे हस्ती से बिल्कुल नीस्त नाबूद हो चुके हैं। उनके पास उनके रसूल वाज़ेह निशानियों के साथ आए थे, बस उन्होंने आजुर्दा तमसक आना यानी उन्हें सताया, अपने हाथ अपने मिन्हों में डाल लिए और बड़ी जसारत के साथ कहने लगे हमने उस दीन का इनकार कर दिया जिसके साथ तुम भेजे गए, और यकीनन हम उस चीज की निस्बत इस्तराब अंगेज शक में मुब्तला है जिसकी तरफ तुम हमें दावत देते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह पिछले कौम को भी रसूल भेजे गए थे वो लोग इनकार करिए, तो क्या तुम्हें वो खबर नहीं पहुंची जिस तरह उन्हें आजाब किया गया, और और ये बताया गया है कि उन्हें बिल्कुल नीस्त नाबूद कर दिया गया, उन्हें कोई पहचानता भी नहीं आज जो अल्लाह की नाशुक्री करते थे और कुफ्र करते थे। तो हमें वहां पर उन तमाम चीजों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह उनका अजर हुआ, उनका उस कौम का आजाब आया, और हमें किस तरह रहना है। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरुकुम इला अजलिन मुस्सम्मा क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना तुरीदूना अन तसुद्दूना अम्मा काना यअबुदु आबाउना फ़अतूना बिसुल्तानिन मुबीन। उनके पैगंबरों ने कहा क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमान और जमीन का पैदा फरमाने वाला है, जो तुम्हें बुलाता है कि तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी खातिर बख्श दे और तुम्हारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हें एक मुकर्रर मियाद तक मोहल्लत दे रखा है। वो काफिर बोल उठे, बोले तुम तो सिर्फ हमारे जैसे बशर ही हो, तुम ये चाहते हो कि हमें उन बुतों से रोक दो जिनकी हम परस्तिश हमारे बाप दादा किया करते थे, तो तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लाओ। फिर से वहां के कुफार ने, काफिर लोग ने और मुतालिबा करा के और रोशन दलील लाओ, मगर जबकि मूसा अलैहिस्सलाम और वहां के पैगंबरों ने उन्हें अल्लाह के बारे में समझाया जो आसमान और जमीन का मालिक है, पैदा फरमाने वाला है, जो तुम्हें बुलाता है। अल्लाह ताला खुद हमें बुला रहा है कि गुनाहों की माफी के लिए एक बहाने के तौर पर हमें माफ कर दे और हमें बख्श दे, मगर हम उससे और दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला हमें एक मोहल्लत दी है मुकर्रर मियाद तक, यानी जब तक आपकी जिंदगी है आप अल्लाह से रुजू हो सकते हैं, वो वक्त करीब है, नहीं पता कब हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें एक मुकर्रर मियाद तक मोहल्लत दिए रखा है। वो काफिर बोल उठे क्या तुम हमें उस बुतों की परस्ती से रोकते हो जो हमारे बाप दादा करते थे, तो तुम हमारे पास कोई रोशन दलील लेकर आओ, क्या तुम सच्चे हो। क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्न अल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअ मिन इबादी वमा काना लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़निल्लाह व अला अल्लाहि फलितवक्कलिल मुमिनून। उनके रसूलों ने उनसे कहा अगरचे हम नफ्स बशरियत में तुम्हारी तरह इंसान ही है, यानी दिखने में तो बशर ही है, अल्लाह ताला बशरियत में उन्हें भेजा है, हम में से ही उन्हें नेक रसूल बनाकर भेजा है, बशरियत का लिबास उन्हें पहनाया है, तुम्हारी तरह इंसान ही है। लेकिन उस फर्क पर भी गौर करो कि अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान फरमाता है। अल्लाह ताला उन चुनिंदा बंदों को रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ताला उन पर एहसान किया है। फिर बराबरी कैसी हो सकती है अगर आज लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आम इंसान की तरह कहते हैं, मगर औज़ बिल्लाह समझ है कि बशरियत का लिबास हमारे लिए है, पर अल्लाह तो वो रसूल है, अल्लाह उन पर एहसान किया है। तो हम में और पैगंबरों में कभी बराबरी नहीं हो सकती, और हमें वो करना भी नहीं है। पैगंबरों का मर्तबा अलग है, वो बशरियत में रहकर हमें समझाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम में उन बराबरी कैसी, और रह गई रोशन दलील की बात, ये हमारे काम नहीं कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हारे पास कोई दलील ले आए, यानी यही रोशन दलील है कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई बात नहीं कहते। अल्लाह ताला जो फरमाता है वो वही के जरिए से आप
ہمیں اطلاع دیتا ہے رسولوں کو، رسول ہمارے تک پہنچاتے ہیں، تو وہی ہے۔ اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اسی نے ہمیں ہدایت و کامیابی کی راہ میں دکھائی ہے، اور ہم ضرور تمہاری اذیت رسانیوں پر صبر کریں گے۔ اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اہل توکل مطلب جو مؤمن ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر ہمیں توکل کرنا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ اور کافر لوگ اپنے پیغمبروں سے کہنے لگے ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا تمہیں ضرور تو ہمارے مذہب میں لوٹ آنا ہوگا۔ تو ان کے رب نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، کیونکہ وہ لوگ الگ پلان تھے۔ وہ لوگ کہے ہیں کہ اگر تم یہاں پر رہو گے تو ہمارا ہی مذہب کو فالو کرنا ہے، نہیں تو ہم تمہیں وہاں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کی وحی اتری، اللہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ وہی بھیجیے کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، یعنی جو کفر پر تھے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور ہلاک فرما دے گا۔ وَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم تمہیں ضرور اسی ملک میں آباد فرمائیں گے۔ یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہوا۔ یعنی اللہ پر جو بھروسہ کرے گا، اللہ کے ایمان پر حق لائے گا، یعنی کتنے بھی لوگ اپوزیشن میں ہو، ان کی باتوں کو نہیں مان کر اللہ کی بات پر مانے گا، تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں اسی ملک میں آباد فرما دے گا۔ اور جو بھی اللہ سے ڈریں گے، اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا گا اور میرے وعدہ عذاب سے خائف ہے، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ضرور اجر، یعنی ان کے جو بھی وہاں پر انہیں پریشان کر رہے ہیں، اسی میں ان کو ملک میں آباد فرما دے گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور بالآخر رسولوں نے اللہ سے فتح مانگی، اور ہر شخص، ہر سرکشی ضدی نامراد ہو گیا، یعنی جو بھی سرکشی میں تھے، جو بھی اس میں تھے، وہ نامراد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اسی رسولوں کو انہیں فتح مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو انہیں فتح مل گئی۔ مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ۔ اسی بربادی کے پیچھے پھر جہنم ہے، اور اسے یعنی پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یہ عذاب بتایا جا رہا ہے کس طرح انہیں جہنم میں عذاب آئے گا، یعنی جو بھی پیپ آپ دیکھتے ہیں کہ پیپ نکلتا ہے، اس کی پانی انہیں ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں ان عذاب سے بچائے۔ تو جو بھی اللہ سے کفر کرتے ہیں، سرکشی میں رہتے ہیں، رسولوں کے بات کو نہیں مانتے ہیں، فالو نہیں کرتے ہیں، تو انہیں اس بربادی کے پیچھے، یعنی جب دنیا میں تو انہیں نیست نابود کر دیا گیا، پھر اس کے بعد عذاب یہ ہے کہ ان جہنمی میں داخل کیا جائے گا، اور اس جہنمیوں کا یہ عذاب یہ ہے کہ اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُوهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُوهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ جسے وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ پیے گا، اور اسے حلق سے نیچے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی، اور وہ مر بھی نہ سکے گا۔ یعنی اس عذاب کو بتایا جا رہا ہے کھلا کھلا انداز میں ہمیں، کس طرح اسے مشکل ہوگی، مشکل کے ساتھ ایک گھونٹ پیپ کا پانی پیے گا، اور اسے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے گا، اور اسے ہر طرف سے موت آ گھیرے گی، یعنی موت کو دیکھتا رہے گا، گھیرے گی، مگر مر بھی نہ سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے ایک اور بڑا ہی سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ہمیں ان عذاب سے بچائے، ہمیں رسولوں کے فرمان پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ کے پیغام کو عمل کرنے والا بنائے، حق کو جاننے والے بنائے، حق کو پہچاننے والا بنائے، ان تمام کفران کلمات سے، کفر کے کاموں سے بچائے، اور ان عذاب سے خاص کر بچائے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، اور ان کے مثال یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی مانند ہے، راکھ جو جلنے بعد راکھ موجود ہے، اس راکھ کی مانند ہے جس پر تیز آندھی کے دن سخت ہوا اور ہوا کا جھونکا آ گیا۔ وہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کمائے تھے کسی چیز پر قابو نہیں پا سکیں گے، یہی بہت دور کی گمراہی ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اعمال کیے ہیں، تو ان راکھ کی اگزامپل دیا گیا، جب بھی ہوا یا
तेज हवा आएगी या आंधी आएगी तो उन राख को उड़ा कर लेके जाएगी। तो नेकियां जो भी वो नेकियों पर डटे रहेंगे, नेक पर अपने नेकियों पर वो लोग गुरूर करेंगे, तो वो कुफ्र यानी काफिर लोग जो भी करेंगे तो उन्हें बताया जा रहा है कि उन नेकियों का एग्जाम्पल राख की तरह है। जब भी हवा आएगी इस तरह उड़ा जाएगा, तो नेक अमाल भी उसी तरह गवाए जाएंगे और उन्हें उस पर काबू नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। फिर यही बहुत दूर की गुमराही है। तो यहाँ पर हमें और एक बात बताते हैं कि हबीबी हम जो भी नेक अमाल करते हैं ये हमारे लिए बेहतरी है, हमें उस पर इतराना नहीं है, गुरूर करना नहीं है, बस हमेशा अल्लाह का फजल मानते रहना चाहिए, अल्लाह के फजल पर भरोसा करना है, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अपने अमाल पर हमें गुरूर तकब्बुर भी करना नहीं है। हम अमाल कर रहे हैं ये हमारे फर्ज है, करना जरूरी है। जो भी फर्ज बताया गया है, फर्ज अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म समझकर हमें अमाल करना है और उसी अमाल के बरकत से हमारी जिंदगी भी अच्छी हो जाएंगी। मगर अमाल की वजह से अरे ये मैं नमाज पढ़ रहा हूँ मगर मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, इस तरह से डाउट्स नहीं आना है। हम ना अपने कामों के लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अपने कामों के लिए नेक अमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने रब का पैगाम है, रब का हुक्म है, अल्लाह ने फरमाया, रसूल ने बताया तो अमाल कर रहे हैं। उन अमाल को रब का हुक्म समझकर हमें करना है, रब का यानी बंदा जो बंदगी समझकर हमें उन अमाल को करना है। तब अल्लाह ताला अपना फजल भी फरमाएगा और हमें जिंदगियों भी आसान करेंगे। तो हमें ये हर बार ये रखना है कि जो भी नेक अमाल, नमाज ही नहीं, हर नेक अमाल जो भी कर रहे हैं रब का हुक्म समझकर करना है और हमें उससे यानी बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, मगर बेनिफिट्स की आस लगाकर हम आमाल नहीं करना है। तो नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं तो ये अलग है, ये अलग है। तब अक्सर लोग ये भी देखा गया है कि काम नहीं हो रहे बोलकर नमाज को तर्क कर देते हैं और आउज़ बिल्लाह नमाज की वजह से आपको बेनिफिट्स तो है ही, मगर रब का हुक्म समझ कर अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया और दीन में हमें आसानी मिलेगी। हमें ये याद रखना है कि अमाल पर हमें दारोमदार नहीं है, अल्लाह के फजल पर भरोसा करना है हमेशा। तो कई वाकयात हैं, इंशाल्लाह वक्त मिलेंगी तो आपको सुनाऊंगा आगे क्या क्या वाकयात इसके ताल्लुक से भी है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हमें वो बात को याद गौर फिक्र करना है। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि यशयुज़हिबुकुम व यअति बिख़ल्क़िन जदीद। ऐ सुनने वाले, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ने आसमानों और जमीन को हक पर मबनी हिकमत के साथ पैदा फरमाया, अगर वो चाहे तो तुम्हें नीसो नाबूद फरमा दे और तुम्हारी जगह नई मखलूक ले आएगा। तो मतलब यहाँ पर और एक बताया जा रहा है कि इस मखलूक को अल्लाह की कोई हाजत नहीं है। अल्लाह अगर चाहता है, जिस तरह जमीन आसमान को बनाया हिकमत के साथ, अगर वो चाहता है तो इस मखलूक को फना करके और नई मखलूक अल्लाह जिसे चाहे वो पैदा फरमा सकता है। अल्लाह के हाथ में हर कुछ, अल्लाह ताला हर चीज को कर सकता है। तो हमें यहाँ पर मखलूक के यानी अमाल पर गौर फिक्र नहीं करके अल्लाह के फजल मांगते हुए हमें ये समझना है कि अल्लाह हर चीज का खालिक है, जब जो चाहे वो कर सकता है। तो हमें जो मोहलत दे रहा है, जो जिंदगी दी है, ये सब अल्लाह की नियामतें हैं। नियामत समझ कर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपना जिंदगी को बसर करना है। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये काम अल्लाह पर कुछ भी दुश्वार नहीं है। अल्लाह हर चीज कर सकता है, अल्लाह को कोई दुश्वार नहीं हो सकता, दुश्वार ही नहीं है। अगर अल्लाह चाहे इस मखलूक को निकाल कर दूसरे मखलूक भी ला सकता है, आज मुझे निकाल कर दूसरे को भी जो जिसे अल्लाह चाहे पैदा फरमा सकता है। जो अल्लाह का बंदगी करने वाला है, फरमाबरदार है, तो अल्लाह के लिए कोई दुश्वार नहीं। हमें वो भी याद रखना है, जो भी नियामतें दी गई है, जो भी हमें बताया गया रहा है, जो भी हमें हर चीज, सुबह उठ रहे हैं, रात में सो रहे हैं, सुबह नींद खुल रही है, आंख खुल रही है, ये भी अल्लाह की नियामत है, वो समय हमें याद रखना है। वबरज़ुलिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल ज़ुअफ़ाउ लिल्लज़ीना इस्तकबरू इन्ना कुन्ना लकुम तबअन फ़हल अंतुम मुग़नूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाहि मिन शै क़ालू लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम सवाउन अलैना अजज़ीना अम सबरना मा लना मिन महीस। और रोज़ महशर अल्लाह के सामने सब छोटे बड़े हाजिर होंगे, तो पैरवी करने वाले कमजोर लोग ताकतवर मुतकब्बिरों से कहेंगे, हम तो उम्र भर तुम्हारे ताबे रहे, तो क्या तुम अल्लाह के आजाब से भी हमें किसी कदर बचा सकते हो। यानी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि रोज़े महशर
हर एक को वहां पर खड़े होना है, छोटे है, बड़े है, कमजोर है, ताकतवर है, हर एक को वहां पर अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो बताया जा रहा है कि कमजोर लोग ताकतवर मुतकब्बिरों से कहेंगे, क्योंकि दुनिया में मुतकब्बिर जो ताकतवर है वो कमजोर लोगों को अपने ही फॉलो करने पर जोर जबरदस्ती करते हैं। तो वहां पर कमजोर लोग ताकतवर मुतकब्बिरों से कहेंगे, हम तो उम्र भर यानी दुनिया भर में तुम्हारे ताबे रहे थे, तुम्हें फॉलो कर रहे थे, तो क्या तुम अल्लाह के अजाब से भी हमें किसी कदर बचा सकते हो? यानी उन्हें पूछा जाएगा, उन मुतकब्बिर लोगों से कमजोर लोग पूछे जाएंगे, पूछते हैं वो आमर अपने पीछे लगने वाले गरीबों से कहेंगे। यानी अब मुतकब्बिर का जवाब सुने, कहेंगे अगर अल्लाह हमें हिदायत करता तो हम तुम्हें भी जरूर हिदायत की राह दिखाते, हम खुद भी गुमराह थे तो तुम्हें भी गुमराह करते रहे, हम पर बराबर है खा आज हम आह जारी करें या सब्र करें, हमारे लिए कोई राह फरार नहीं। यानी वो बताएंगे कि हम गुमराही में थे तो तुम्हें भी उसी पर फोर्स कर रहे थे, उसी पर जबरदस्ती कर रहे थे, अगर अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाता तो हम भी तुम्हें हिदायत करते थे। आज मैं यानी कमजोर या मुतकब्बिर सब बराबर है अल्लाह की राह में, वो आहजारी करेंगे और सब्र करेंगे, हमारे लिए कोई राह फरार नहीं है, वहां पर कोई किसी से बच नहीं सकते। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दुनिया में जो भी हम कर रहे हैं, या आपके नीचे कोई हो, या आप ताकत पर हो, आप अच्छे ओहदे पर हो, या आपके नीचे कोई हो, तो यानी वहां पर मिसयूज नहीं करना है, जो भी शरीयत के मुताबिक है हमें उस पर गौर फिक्र करते हुए दुनिया में बसर करना है। तो वहां पर हर एक को पूछ होगी, तो यहाँ पर हमें अपने अमाल पर गौर करते हुए दूसरों को भी अच्छी नसीहत करना है, ना कि ईमान से इस्लाम के अलग, उस शरीयत के अलग कुछ हमें किसी को फोर्स नहीं करना है यहाँ पर, अगर उसकी पूछ वहां पर हमें जरूर होगी। इंशाल्लाह आज हम यहाँ पर अपना प्रोग्राम को भी खत्म करते हैं, क्योंकि 15 रुकू हो चुके हैं। इंशाल्लाह आइंदा नशिश में यानी कल के नशिश में इंशाल्लाह 13वां पारा मुकम्मल होगा। आज हमने 2 रुकू समाप्त किए हैं, काफी चीजें मिले हैं, समझे हैं, खासकर हर यानी टेक अवे समझे, तमाम गुफ्तगू का लुब-ए-लुआब समझे, क्या है कि हमें नियामतें जो दी गई है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, और अपने अमाल पर हमें कभी ही यानी तकब्बर घमंड नहीं करना है, और हमें अल्लाह का फजल मांगते रहना चाहिए। और इसी तरह अगर हम अपने नियामतों जो भी अल्लाह हमें दी है उस पर अगर हम नियामतें पर शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें उसमें में बरकत अता फरमाएगा और ज्यादती अता फरमाएगी, नियामतों में और इजाफा होगा। और अगर हम नाशुक्री करेंगे यानी गिला शिकवा करते रहेंगे तो नहीं पता जो नियामतें मिली है वो भी हमसे छिन जा सके, क्योंकि पिछले उम्मतों पर आपने समाप्त किया था, दस्तरखान की नियामत आई थी, वो लोग उस पर गिला शिकवा करते थे, उन्हें उससे छीन लिया गया। तो हमें गौर फिक्र करना है। आइए दुआ के साथ इंशाल्लाह आज की नशिस्त का इख्तिताम करेंगे। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है सुना है, या अल्लाह उसमें कुछ कोताहियां हो, गलतियां हो, पढ़ने में या अल्लाह कुछ बेअदबी हो, या अल्लाह ज़ेर ज़बर गलती भी हो, या अल्लाह समझने में कुछ गलती हो, या अल्लाह अपने फजल करम से माफ फरमा कर या अल्लाह इसे अपने प्यारे नबी के बारगाह में अल्लाह को मकबूल फरमा दे। या अल्लाह हमें कलाम पाक को या अल्लाह समझने वाला बना दे, कुरान का इदराक समझ बूझ नसीब फरमा दे, कुरान का फहम नसीब फरमा दे, कुरान को समझना आसान फरमा दे। या अल्लाह इस कलाम पाक की बरकत से या अल्लाह हमें या अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमा दे, हर रोज तेरे कलाम पाक को समझने वाला बना दे, तमाम रुकावटों से महफूज फरमा दे, रुकावटों को दूर फरमा दे, या वक्त निकाल कर या अल्लाह समझने वाला बना दे। या अल्लाह जो भी बीमार है या अल्लाह तमाम को या अल्लाह इस कलाम पाक की बरकत से शिफा नसीब फरमा दे, जो परेशान हाल है तमाम की परेशानी को दूर फरमा दे, जो बेरोजगार तमाम को रोजगार बरकत नसीब फरमा दे, जो रोजगारी है अल्लाह हलाल रिस्क कमाने वाला बना दे, तमाम के रोजगार बरकत नसीब फरमा दे, जो या अल्लाह समात कर रहे हैं सुन रहे हैं तमाम के घरों में रहमत के बारिश नसीब फरमा दे, तमाम को या अल्लाह जो भी नेक जायज मकासद है पूरा फरमा दे, 5 वक्त नमाजी बा जमात के साथ पढ़ने वाला बना दे। या अल्लाह जो भी परेशान हाल है तमाम की परेशानी दूर फरमा दे, गैबी इमदाद फरमा दे, गैबी इमदाद फरमा दे, हर एक की मदद फरमा दे, रूहानी जिस्मानी क़ुव्वत नसीब फरमा दे, जमीनी फितनों से आसमानी बलाओं से महफूज फरमा दे, शयातीन के शर से महफूज फरमा दे, हासिदीन के हसद से महफूज फरमा दे। या अल्लाह हम सब के या वालिदैन की या अल्लाह अज़ीज़ व क़रीब की उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम को या अल्लाह तमाम की या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, दिखावा रियाकारी से महफूज फरमा दे, जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन
अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लम।